Good morning, dear students. Dear students, today I am going to discuss with you the remaining part of chapter number 5 of history. Yesterday I have discussed with you the starting part of the lesson 5 of history, kingdoms, kings and an early republic. Up to this level I have discussed with you how some men become rulers. Basically, in the old time, leaders were not elected as we elect them in these days. Basically, that person was elected as a king, as a ruler who was powerful, and he basically elected through a process. And under this process, what happens? A Ashwamedh or a horse sacrifice was one such famous ritual at that time. Under this ritual, a horse was let loose to wander freely, and it was guarded by Raja's men. If the horse wandered into kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant they had accepted that Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than. These Rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with the gifts. The Raja who organized sacrifice was recognized as being very powerful, and all those who came brought gift for him. It means in the yesterday lecture I have discussed with you the process of election of a ruler, process of election of a king at that time. Generally, the process of electing a king was not as we find it in today's society. In the today's society, we elect the leader by casting our votes. But at that time, generally a Ashwamedh Yagna was performed. Under this yagna, a horse was set free in the kingdom of other kings, and if other kings does not restrict this horse, does not control this horse, it means they had accepted Raja who belonged to this king. And if they control the horse loose by Raja, control the horse loose by the king of very big king, it means now they have to fight with the owner of the horse. Owner of the horse means a big king who has loosed the horse for the other kingdoms. It means in the previous times king was not elected like these days. बेटा मैं हिंदी में बता दूं आपको, पुराने समय में क्या होता था कि राजा को सिलेक्ट और इलेक्ट करने का तरीका आज से थोड़ा डिफरेंट था. पुराने समय में राजा क्या करते थे कि अपने राज्य से एक घोड़े को छोड़ देते थे, और वो घोड़ा क्या करता था कि सारे दूसरे राजाओं के साम्राज्य में भी वो घूमता था. और अगर दूसरे राज्य के जो राजा थे वो उसको पकड़ लेते थे तो इसका मतलब ये होता था कि उन्होंने जिस राजा का ये घोड़ा है उसकी दास्ता को स्वीकार नहीं किया और वो राजा से संघर्ष करने के लिए तैयार है. लेकिन जो राजा है अपने राज्य में उस घोड़े को फ्रीली मूव करने देते, उस हॉर्स को फ्रीली मूव करने देते, फ्रीली जाने देते थे, उसका अर्थ होता था कि इन राजाओं ने उस राजा की जो किंगडम्स है, उस राजा का जो वर्चस्व है उसको स्वीकार कर लिया और उस राजा से, जिसका यानी ये घोड़ा है, उससे अपने आप को छोटा मानते थे और उस राजा के किंगडम के साथ अपने आप को मर्ज करने के लिए, उस राजा के साथ अपने आप शामिल होने के लिए तैयार हो जाते थे. तो जब ये हॉर्स घूम कर वापिस आता था तो जिस राजा ने उस राजा के हॉर्स को नहीं पकड़ा, उन सब को एक सैक्रिफाइस के लिए हवन होता था बहुत बड़ा, उसके लिए बुलाया जाता था. और उस हवन में सब किंग राजा के लिए जिन्होंने राजा की दास्ता को स्वीकार किया गिफ्ट लेकर आते थे, बड़े बड़े प्राइज लेकर आते थे, उस राजा को दिए जाते थे. और ये जो यज्ञ होता था उसको उस समय के बड़े बड़े पुजारी इसको परफॉर्म करते थे. और वो जो राजा होता था जिसने अपना हॉर्स को छोड़ा था वो राजा का राज्याभिषेक किया जाता था. Now what are the Janpas?
बेसिकली बेटा जनपद का मतलब जन प्लस पद्स, जन मीन्स पीपल, पद्स मीन्स फूट और पैर। तो जनपद का मतलब होता था बेटा कि लोगों के पैर जिस जगह पर पड़ते। जनपद का मतलब होता है बेटा एरिया। द राजा हु परफॉर्म्ड दीज बिग सैक्रिफाइस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज द राजाज ऑफ जनपद रादर देन जनास। यानी जो राजा इस यज्ञ को पूर्ण करता था, यानी जो राजा जिसका ऑर्स घूम कर सारे देशों से घूम कर जीत कर वापिस आता था और वो एक सैक्रिफाइस, एक यज्ञ का आयोजन करता था, उस यज्ञ में जो राजा होता था वो अपनी दोबारा से एक शब्द लेता था, लेकिन वो जो राजा होता था वो राजा जन का राजा नहीं कहलाता था, जनपद का राजा कहलाता था। जनपद का मतलब होता है एक बड़ी जगह जहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव excavated a number of settlement in these जनपद such as पुराना किला in Delhi, हस्तिनापुर near मेरठ and पतंजलि खेरा near इटा। यानी इसका मतलब यह है कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने खुदाई में ऐसे बहुत सारे जनपद देखे और इन जनपद में कई जनपद में से उन्हें पुराना किला, हस्तिनापुर जैसे छोटे छोटे शहरों के अवशेष मिले और दे फाउंड पीपल लिविंग इन द हट्स एंड केप्ट कैटल एज देयर एनिमल्स। और खुदाई से ये भी पता लगा कि वहाँ पर जो जनपद में लोग रहते थे वो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाते रहते थे और अपने पास जानवर रखते थे और वो तरह तरह की फसलें भी उगाते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पर्सी, शुगरकेन, सीसम, मस्टर्ड। दे मेड अर्दन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर वर रेड। ऐसा भी बताया जाता है, आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा भी फाइंड किया कि उन्होंने मिट्टी के छोटे छोटे गड्ढे बनाए हुए थे और इन मिट्टी के गड्ढों का वो प्रयोग जनरली अनाज रखने के लिए करते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस आई नोन एज द पेंटेड ग्रे वेयर। As it is obvious that the name, this grey pots had painted design, usually simple lines and geometric patterns. Now the another is Mahajanpad. Janpad and Mahajanpad, both are the two different things. जनपद का मतलब होता है बेटा जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एरिया को बोलते हैं जनपद, जहाँ पर काफ़ी लोग रहेंगे। महाजनपद यानी नाम से क्लियर है, महा प्लस जनपद यानी बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर लोग अधिक लोग रहेंगे। About 2500 years ago, some janpads became more important than others and were known as the Mahajanpads. Some of these shown on the map. Most Mahajanpads had a capital city. Many of these were fortified. This means the huge walls of wood, brick or stone were built around them. In the map, 4 important janpads, Mahajanpads and cities. Now, Magad was the Mahajanpad, Kosla was the Mahajanpad, Vaishali was the Mahajanpad, Avanti, Ujjain was the Mahajanpad. It means these were the big areas where a large population lives. Forts were probably built because people were afraid of attack from other kings and needed protection. जनरली बेटा उस समय जो महल बनाए जाते थे, जो किले बनाए जाते थे, उनके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। यानी उस समय जैसे आजकल के हमारे मकान हैं ऐसे नहीं बनाए जाते थे। जो किले बनाए जाते थे, बड़े बड़े किले बनाए जाते थे, वो किले इसलिए बनाए जाते थे ताकि उनको दुश्मन राजा से सुरक्षित रखा जा सके, ताकि कोई दुश्मन राजा उस पर अगर हमला करे तो वो अंदर ना आ पाए। It is also likely that some ruler wanted to show how rich and powerful they were. Building really large, tall and impressive was around these cities. और कुछ राजा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपने फोर्ट के चारों तरफ, अपने रहने के जगह के चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा देते थे। उन बिल्डिंगें बनवाने का मतलब ये शो करना होता था कि दे आर वेरी लार्ज, दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी पावरफुल रूलर्स. Also in this way land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और इसलिए भी किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी जाती थी ताकि उनके अंदर रहने वाले लोगों को राजा आसानी से कंट्रोल कर सके, उनकी देखभाल कर सके, और अगर उसके किले के अंदर रहने वाले लोग अगर कभी विद्रोह करें तो राजा उनको कंट्रोल कर सके. बिल्डिंग सच एज ह्यूज वॉल्स required a great deal of planning. Thousands
If not, lakhs of bricks or stone had to be prepared. The intern meant enormous labor provided, possibly by thousands of men, women, children, and resources had to be found for all this. और आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी पता लगाया कि जो किले के चारों तरफ दीवारें बनाई जाती थी, जो किले के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स के चारों तरफ जो ऊंची ऊंची दीवारें थी, काफ़ी उसमें स्टोन्स का, ब्रिस्क का यूज़ किया गया और लगता है कि उनको बनाने में भी काफ़ी लेबर और काफ़ी ज़्यादा पैसे का प्रयोग किया गया था। द न्यू राजा नाउ बिकेन maintaining army. Soldiers were paid regular salary and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch mark coins. You will read more about these coins chapter 8. ऐसा भी कहा जाता है कि अब राजाओं ने अपने किले की रक्षा के लिए आर्मी रखनी शुरू कर दी थी, सेना रखनी शुरू कर दी थी, और उस सेना को वो पूरा समय के लिए रखा जाता था, पूरे साल के लिए रखा जाता था और उनको रेगुलर रखा जाता था। उनकी सैलरी जो थी वो दी जाती थी, तनख्वाहों पर राजाओं ने सैनिकों को रखना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि उनको जो तनख्वाह दी जाती थी उसमें जो सिक्के दिए जाते थे वो पंच्ड मार्क थे, यानी वो जो सिक्के की फॉर्म में उनको जो तनख्वाह दी जाती थी उसके ऊपर पंच यानी छेद का एक निशान होता था।